السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے اور مجھے کہتے ہیں میاں عمران ارشد۔ رب تعالیٰ جو مالک کائنات ہے اس نے انسانوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے اور دل میں محبت ڈالی ہے، مرد کی عورت کے لیے، عورت کی مرد کے لیے، اور پھر تہذیب، تمیز اور سلیقہ قائم رکھنے کے لیے نکاح جیسا محترم اور معتبر رشتہ بنایا ہے، اور پھر انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس ہے اگر وہ نکاح کے رشتے میں ہے۔ لیکن جس کمرے میں میں موجود ہوں، جہاں پر خاتون نے اپنا لباس اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے پہنچایا ہے، یعنی بیوی نے اپنے خاوند کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے۔ کب؟ جب آشنا اس کے لیے فکر معاش میں تھا، اس کے خاندان، قبیلے اور بچوں کو پالنے کے لیے دن رات، سردی گرمی بارش، کسی بھی تکلیف کو سینے پر جھیلتا تھا۔ لیکن وہ بدبخت خاتون جس کو رانی اور ملکہ کی طرح گھر میں بٹھایا گیا تھا، وہ اپنے آشنا کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اور یہ سب کچھ سرائے عالمگیر کے گاؤں سرڈوک میں ہو رہا تھا۔ یہ بستر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر خاوند سوتا تھا، یہاں پر وہ بدبخت عورت بچوں کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ لیکن آخری رات جب اس کو قتل کیا گیا اور پھر اس کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، خاوند ویٹر کا کام کرتا ہے، ایک ہوٹل پہ ملازمت کرتا ہے، رات دیر سے گھر آتا ہے، محنت مزدوری کر کے آیا ہے، دروازہ بند ہے، اس کو خاتون کی آواز آ رہی ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، پوچھتا ہے، انسسٹ کرتا ہے، کون تھا، کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ کہتی میں تو یہ بچوں کو سلا رہی تھی، بچوں کے ساتھ۔ ایونچولی کہانی یہ ختم ہوتی ہے کہ کچھ دیر بعد اس بیڈ کے نیچے سے وہ عاشق نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد، اس کے نکلنے کی قیمت میں یہ خاتون اور اس کا عاشق مل کر اپنے خاوند کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ مدعی مقدمہ موجود ہے۔ السلام علیکم بھائی۔ والسلام۔ بھائی کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ کچھ بری نہیں لگی۔ کیا ہوا اس کمرے میں؟ کون سی قیامت صغریٰ آئی ہے بھائی؟ اس کمرے میں میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے رات کے اندھیرے میں۔ تو بھائی کام سے تقریباً 12 سے بعد یہاں پر آیا ہے۔ بھائی روٹین میں اسی ٹائم 12 بجے ہی آتا تھا؟ جی 12 بجے۔ کیا کام کرتا ہے بھائی؟ ہوٹل پر جاب کرتا تھا، اچھا ویٹر۔ اسی گاؤں میں؟ نہیں، نہر کے ساتھ ہوٹل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ تو رات کو 12 سے بعد 12:30 کے لگ بھگ ادھر پہنچتا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو روزانہ آتا تھا، روزانہ صبح ڈپٹی پہ جاتا۔ اس دن آیا ہے تو اس نے اس کو پہلے ادھر نیچے چھپا دیا۔ اس کو کس کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا زین الطاف۔ زین الطاف؟ الطاف۔ اچھا جی۔ تو جب اس نے میرے بھائی نے بیڈ کے نیچے چھپا دیا؟ جی۔ اچھا، جب اس نے اپنے عاشق کو، زین الطاف کو، آپ کی بھابھی نے بیڈ کے نیچے چھپایا ہے تو بچے اسی کمرے میں موجود تھے۔ بچوں کی عمریں کیا ہے؟ 12 سال چھوٹی ہے بیٹی، بڑی چھوٹا بیٹا ہے کوئی 7 سال کا۔ یعنی وہ 12 سال کی بیٹی اور 7 سال کے بیٹے کے ساتھ سامنے اسی کمرے میں موجود ہوتی تھی، ان کے سامنے ہی اپنے عاشق سے ملاقات کیا کرتی؟ بالکل جی، کیونکہ چھوٹی بیٹی وہ سب جانتی ہے، سب دیکھ رہی تھی، اس دن بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے پاپا کو امی اور اس زین الطاف نے دونوں نے پھندا ڈال کر گلے میں تو مار دیا بے دردی سے۔ نہیں، آپ کا بھائی آیا ہے تو کیا دروازہ بند تھا؟ کیسے اس کو چھپنے کا موقع کیسے ملا گھر میں آتے؟ دروازہ بند سی۔ اچھا، دروازہ کھولنے تک مطلب اسے نیچے چھپا دیا تھا بیڈ کے نیچے؟ جی۔ بچے سو رہے تھے، جاگ رہے تھے؟ بچی جاگ رہی تھی، چھوٹا بچہ سو رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اندر ہے، اس کو بھائی کو کوئی تھوڑا محسوس ہو گیا کہ اندر کوئی بندہ موجود ہے، تو اس وقت وہ دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے ہیں۔ میرا بھائی جی، بھائی کہتا ہے کہ ادھر ضرور کوئی بندہ چھپے گا، وہ آنی کچھ بھی نہیں، اس طرح وہ آپس سے جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ بھی نکلے ہے۔ اچھا جی۔ وہ زین بھی پھر کہڑے پاسوں نکلے؟ اس سائڈ تو جی، اتھو نال ہی جگہ ہی تھوڑی جی، بس وہ ایک سائڈ تو ہو کے نال ہی تھلا نظر آئے نا جی۔
ये इतनी सी जगह है जी, क्योंकि ये छुपने की जगह। उस तरफ बच्चे होते थे, हाँ। इस तरफ दोनों थे जी। बेटी भी यही और छोटी कहती है कि नीचे बैठ के नीचे चला जाता था। अच्छा जी। और ये रूटीन में आता था? नहीं, कोई गैप एक दिन या 2 दिन के बाद। यानी आदि मुजरिम था? आदि। अच्छा जी। पहले इसको इधर से ले गया था 8-10 दिन बच्चों समेत, औरत को जी। एक नसा के ले गया? जी, कुछ 4-5 माह पहले की बात है। हाँ। फिर ये मुझे पकड़ा दो, ऐसा नहीं ना हरिपुर शहर, कोई हरिपुर, यहाँ से आशिक जो है इसको आपकी भाभी को और बच्चों को साथ लेके चला गया हरिपुर जी। और फिर वापस ये कैसे आए थे? वापस फिर राब्ता की तरह टिकट आए हैं, तो पता चला कि उसकी माई के घर गए हैं चेलियाँ वाला, तो फिर उसने सब कुछ बताया कि वो उधर होता है, मुझे साथ ले जाए। इधर से वाला साहब और यही छोटा भाई साथ गया, और चेयरमैन भाई कराम साहब के, तो उधर से मौके से पकड़े गए थे। फिर इसको वापस लाए, ले आके फिर बसाई जी। और भाई जिद करता था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको वापस लाया। वो उसने बहुत मजबूर कर दिया। मैंने वाल साहब को बोला कि रहने दो उधर ही, क्योंकि इतनी बेइज्जती बदनामी करके भी उसको वापस नहीं। जी। वो ये जिद करता था रोज़ाना भाई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वापस आना। फिर अच्छा, ये अब निकल आया इधर से, फिर क्या हुआ? फिर ये इसके पास आ गए हैं, इसको झगड़ने लग पे हैं। इनको मतलब फंदा डाल दिया गले में, फंदा डाल के इधर ही वो इस तरह के उसने आगे जवाबी कार्रवाई मेरे हाल विच नहीं की, क्योंकि इतना मैं उसको कल भी देखा था। मुझे बता रहे हैं इधर खून शून भी था कमरे में? सारा खून था, क्योंकि पाँव उसका काटा हुआ था, गहरा टक था कि खून सारा उसका बह गया नीचे। चादर पर तो हमको नज़र नहीं आया, साफ थी। उसने सब मौके वाले निशान सबूत सब मिटा दिए थे। धोया था कमरा? जी, धोया था। ये रात किस टाइम की बात है? रात 1 के बाद की बात है। 1 बजे? 1 बजे के बाद ये। और आप लोगों को कब पता चला? हमको सुबह तक सरी ने टाइम तय। कैसे पता चला था? मैं जहाँ पे जा रहा था, ये दरवाज़ा मैंने अपना खोला है, ये साथ वाला घर जी। तो चिड़चिड़ाहट हो रही सी तकरीबन सही ने तो रात ने दरमियान बिच की हो रही सी, मतलब इन्होंने की झड़प जी आवाज़ अजीब अजीब निकल रही थी मियाँ बीवी की जी। फिर मैं सोचा वैसे आपस में रोज़मर्रा का इनका मामूल था लड़ने का, तो फिर मैं थोड़ा ना गौर की थी। फिर अजीब जी आवाज़ बाई की ना, जैसे गला दबा रहे। आपने सुनी? जी। फिर मैं इधर बैक साइड था, भाई का छोटे का घर है हसन का, उसको बुला के लाया। फिर हमने दीवार फलांगी, बाहर कुंडा लगा हुआ था। ये दरवाज़ा थोड़ा वैसे कुंडा अड़ाया था। ये दरवाजे को जब खोला तो जैन नाम का जो लड़का वो मेरे भाई की छाती पर बैठा हुआ था, उसने फंदा इस इधर ज़ोर से कपिया। जो बरजाई है जो वो उसने और टैट कर रही थी, मतलब आखिरी सांस उस वक्त भाई के चाह रहे थे मेरे ख्याल विच, बहुत आखिरी। वो फिर उस नाल ही चाकू वहाँ सीधा कर दस दोए भाई सा, वो इस नाल ही फिर दोए मौके तो नस गए। मैं बच्ची किथे सी? बच्चे उत्थे सौ गए सी, वो बच्ची आने असी सा वो ज़यान चला गया, तो वो फंदा शंदा खोले तो सांस ले 1-2 बस आखिरी, तो फिर वो पानी शानी देन लग पे, पानी चमचा ना पान लग्या खोने, फंदा खोलिया इसी देता कि जो तुसी इत्थे आए हो ते खून बह रहा सी? नहीं, खून कौन नहीं। खून किथे गया बेटा? खून उसने हमारे आने से पहले ही सफाया कर दिया था। बिल्कुल नहीं, आपका भाई आखिरी सांसें ले रहा है जब आप अंदर दाखिल हुए, वो जिंदा है जी, और उसकी जिंदगी में ही वो खून का सफाया भी कर चुके हैं। ये फ़ोन उसने कोई खून नहीं था उस वक्त, सफाई कर दी थी। फ़ोन वो जो टक लगाया ने, हो सकता है पहले लगाया ने पाँव पर, बार खून उस वक्त नहीं हमने देखा। अनफॉर्चुनेट है जी, आपके सामने इसके और भी पहलू और हकायक रख रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंतहाई तकलीफ दे मामला आपके सामने रख रहे हैं। सरडोक का इलाका है, सराय आलमगीर है, और ये जो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने इनके चेहरे कवर करवा दिए। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने अपनी आंखों से इसी कमरे में ये गवाही दे रहे हैं, ये गवाह हैं उस हैपनिंग के जिसमें इनकी माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर इनके बाप को कत्ल किया।
यानी इन बच्चों की जन्नत ने, अपेरेंटली जन्नत थी ना इनकी जन्नत ने जन्नत के दाखिले का दरवाजा तोड़ दिया है इन बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि वो आदी मुजरिम थी। और मैं इनकी बात ज्यादा सुनना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। पुत्र की ना है? नैन फातिमा। उम्र कितनी है बच्चा? 10 साल। 10 साल। पुत्र की ना है? जवाद। जवाद दी उम्र कितनी है? 7 साल। इधर आ, 7 साल ਦਾ। इधर आ जाओ, मेरे कोल आ जाओ। जवाद ਇੱਥੇ आ जाओ जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा। बेटी गल सच्ची दसनी है, कूड़ नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना। की होया इस कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं सो रही थी, पहले पापा आए, फिर तो दूसरा आ गया था। तो कौन? फिर जो जिसने मेरे पापा को मारा है। आपने पहले भी उसको कभी देखा हुआ है? हमारे घर आता रहता है। कहाँ पे आता था वो इधर ही। इसी कमरे में? आप भी यहाँ में होती थी? इसी कमरे में होती थी? जी आपकी अम्मी भी यहीं होती थी? जी। ये जिसने आपके अब्बू को मारा है, कितनी दफा इसको पहले आपने इस कमरे में देखा था? कितनी बार देख चुकी हूँ। दिन में आता था या रात में बेटा? रात में। वालदा क्या कहती थी आपकी? अम्मी क्या कहती थी? ये कौन है? मम्मी कहती रहती थी नहीं आओ, मार डालेंगे। उसको मना करती थी कि यहाँ ना हो, ये लोग मार देंगे, लेकिन फिर भी वो आता था। आखिरी रात क्या हुआ जब आपके अब्बू मारे गए? पहले वो आया था, फिर मैं और अम्मी और जवाद सो गए थे, और फिर पापा आ गए थे। आप, अम्मी और जवाद इसी बेड पे सोए हुए थे? तो वो कहाँ से आया था? वो चेलियाँ से। हाँ? चेलियाँ से। वो उधर से। तो यहाँ पर आपकी वालदा के पास ही मौजूद था। जब आपके अब्बू आए हैं तो वो कमरे में पहले था, या वो बाद में आए, या अब्बू बाद में आए? वो पहले आया था। और जब अब्बू आए तो फिर वो कहाँ गया? आप जाग रही थी उस टाइम? सही बताओ, जाग रहे थे? तो उसने क्या किया? बेड के नीचे छुप गया था? क्या किया था? सच बताओ ना पूरा। अब्बू ने चादर देखी है, फिर अब्बू ने उसकी चादर पड़ी देखी अब्बू ने? अच्छा। तो फिर उसने गला पकड़ के मार दिया, और अम्मी ने छुरी मारी है पाँव पे। अब्बू को? ये जहन जो है, उसकी चादर आपके अब्बू ने देखी है, और उसके आपके अब्बू ने आपकी अम्मी से उस पर रोला डाला तो बेड के नीचे से निकल आया, और फिर उसने और आपकी अम्मी ने इकट्ठा कत्ल किया। आपके अब्बू कहाँ सोते थे? यहाँ में। इस चारपाई पे? आप और अम्मी और भाई इस बिस्तर पे सोते थे। ये आपने जब कत्ल आपके अब्बू को कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं शोर मचाया? कुंडी मामा ने चार दी थी। कुंडी लगा दी थी मामा ने? मामा प्यार करती थी आपसे? नहीं करती थी? करती थी। तो फिर ये बाबा को क्यों मार दिया मामा ने? हाँ? आप लोग मामा को नहीं कहते थे कि मामा ये हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, ये हमारे कमरे में क्या करता है? कहा था मामा ने नहीं। मामा ने कहा नहीं, हमने इसे मारना है। हमने इसे मारना है? ये कितनी देर पहले मामा ने कहा था? मामा कितनी बार कह चुकी है। और फिर भी उसके साथ मिलती थी? मामा पे गुस्सा है? आपके बाबा को कत्ल किया? हाँ? क्या चाहती हो अभी? क्या करना चाहिए? इंसाफ क्या? इंसाफ चाहिए? इंसाफ क्या है? क्या हो तो लगेगा इंसाफ को? बाबा प्यार करते थे? बाबा ज्यादा प्यार करते थे या मामा? बाबा। बाबा ज्यादा प्यार करते थे। आपसे कौन ज्यादा प्यार करता था? बाबा। बाबा याद आते हैं? हाँ? मामा को तो पुलिस पकड़ के ले गई है, पता है ना? तो अभी क्या चाहते हैं? क्या हो? मामा से मिलना चाहते हो कि नहीं मिलना चाहते? आप मिलना चाहती हैं अपनी अम्मी से? नहीं मिलना चाहती? क्यों? मैं बाबा को कत्ल किया इसलिए? क्या बात है दिल में? जो बात कहना चाहते हो आप कह लो, मैं सवाल नहीं कर रहा। जो आप बात करना चाहते हैं कर लो। जी तो अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। नाज़रीन, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ इमोरल लगी हो, कुछ चीज़ बुरी लगी हो। मैंने इस बच्ची से और इस बच्चे से बात अपनी मंशा से की है।
मैं जानता हूं कि मैं क्या सवाल कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि वो तमाम खातीन, मर्द भी, लेकिन मेरी बात हकीकतन, मैं अगर सीधा निशाने की बात करूं तो मैं खातीन से बात कर रहा हूं कि आपकी मोहब्बत और मोहब्बत की पींगों के चक्कर में मर्द आपको नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप अपना घर भूल गई हैं, आप अपनी औलाद भूल गई हैं, आप अपनी पेट से तकलीफें सह कर पैदा किए हुए बच्चे भूल गई हैं, तो आप बड़ी अजियत में, आपकी नस्लें बड़ी अजियत में। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इस बच्ची के, इस बच्चे के, इनकी किस्मत देखें कि बाप मर गया इनकी अपनी सगी मां के हाथ से, और मां चली गई कानून के सामने। अब उसके साथ क्या होगा वल्लाहु आलम। मां भी गई, बाप भी गया, एंड दे आर लेफ्ट विद नथिंग। अब मेहरबानी किसी ताए चाचे की, हालांकि उनसे जवाब लिया जाएगा, ताए चाचे बाप की तरह होते हैं, उनकी जिम्मेदारी यही है। तो अब दूसरों के नवाले में से नवाला खाना है। अपना घर तो बर्बाद कर दिया माँ ने, क्यों? क्योंकि माँ को मोहब्बत का भूत चढ़ा हुआ। और ये एक मिसाल नहीं है, ये बेतहाशा मिसालें हैं। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि उन खातीन को जो मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ जाती हैं, बदबख्ती वाली मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ जाती हैं, वो इसको गलत समझती नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। खुदा का खौफ तो दरकिनार, बड़ा डर यह है कि कहीं लोगों के सामने बात ना आ जाए, रब देख रहा है। डजंट मैटर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सराय आलमगीर का इलाका है सडोक, यहां पर मौजूद है। खामद मारा गया है बीवी और उसके आशना के हाथों। मतलब आज से कुछ अरसा पहले हम इसका बिल्कुल उल्ट रिपोर्ट कर रहे होते थे, बट आज हमें बदकिस्मती के साथ ये कुछ रिपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बीवी साहिबा जो है वो मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है किसी और के साथ, अपने खामंद के घर में बैठ के, अपने बच्चों के सामने। किसी चीज की कोई शर्म लिहाज पर्दा नहीं, एक कमरे का घर है। और मैं हैरान होता हूं कि इतना हौसला, इतनी दीदा दलेरी आ कहां से जाती है। पिंडा थावा तो कहते तो कुछ होर ने, फिर तो शायद इतना हौसला नहीं कि मैं कहां, लेकिन एडा मुकाला, एडा मुकाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जी, अल्लाह का हुक्म, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ? ਇਹ ਨੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੋ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਪਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਢੋਕੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ, ਟੋਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਡੋਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਢੋਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੱਸੀ ਸੀ? ਜੀ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਸੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ? ਜੀ, ਜ਼ੈਨ ਨਾਲ। ਜ਼ੈਨ ਨਾਲ ਹੀ? ਜੀ। ਤੇ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੀ? 11 ਦਿਹਾੜੇ। 11 ਦਿਹਾੜੇ? ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੰਦ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੂੜਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਰੁੱਲ ਜਾਸਨ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਲ ਲਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਣ। ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ? ਇਹ ਹਰੀਪੁਰ। ਹਰੀਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ? ਜੀ। ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੀਆਂ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਈ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਆਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰਲੀ ਰਾਤ ਵਾਕਈ ਸਵਾਣੀ ਮਾਰੇ? ਜੀ ਵਾਕਈ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਘਰ, ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਲੇਟਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਤੱਕੀ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਥੱਲੋਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖੇ ਚਾਦਰ ਕਿਸ ਨੇ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਕੜ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਗਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਲੜਨ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਜੀ ਪਿਆਣਾ ਸਿਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮਾਜਰਾ ਕਰ ਛੋੜੀਏ। ਬੱਚੀ ਤੱਕਿਏ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਬੜਾ ਤੱਕੇ। ਔਖਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਆਖਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡ ਸੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਮਾਂ ਕੰਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਛੋੜ ਸੋ। ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ ਸੱਟ ਸਾਂ। ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਕੱਪਣ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੱਕਦੀ ਸੀ ਤਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੋੜ ਸੋ। ਇਸੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਿਓ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ। ਚਾਚਾ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਣੇ ਸਿਆਣੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੰਟ। ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਉਸ ਲਾ ਦੇ ਚੜੇ ਜਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਤਰੇ ਕਮਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਪਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਉੱਪਰ ਸੈਰ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਟੋਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਲ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸੋ? ਜਾਣੂ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ? ਜਾਣੂ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ? ਚਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਜੀ ਬੰਦਾ, ਪਿਓ ਇਹਦਾ? ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੇ ਇਸੇ ਸਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਕ ਲਾਈ ਸੀ? ਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਨੇ ਆ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਐਥਾਮਨਾ ਹੀ ਸੀ ਮਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਏਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਫੇਰ ਇਹਰਾ ਕਰ ਲੱਗ ਪਈ। ਫੇਰ ਚਾਚਾ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਸ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਦੇ ਦੋਤਰੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਸਲੂਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਲਾ ਕਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਸਬ ਕਰ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਐਤਰਾਜ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਬਸ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੱਟ ਜਿਹੇ ਜੰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वालेकुम पकड़- सलाम। पकड़। भाईजान आप बड़े भाई हैं? जी सर, बड़े भाई। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਹ हाँ जी, परले पास है? जी 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 चेक करें। आपको कब पता चला? सर मैं बेसिकली तौर पे ना मुलाजिम हूँ। 1200 रुपये दिहाड़ी है मेरी। हाँ मैं गुजरांवाला के नाम से एक बेकरी है, अच्छा जी। उसमें मैं काम करता हूँ। तो मैं ना अचानक ना छुट्टी लेके ना आ रहा था उसी दिन ओए होए, रात को मैंने छुट्टी ली है, अपनी तनख्वाह ली है उनसे। 1.5 माह उधर में रहा हूँ प्रदेश में। 1.5 महीने बाद कर 1.5 महीने बाद मैं घर आ रहा था। तो रास्ते में जब मैं खारियाँ के करीब पहुँचा हूँ ना, तो पीछे से बच्ची ने फ़ोन किया मुझे आपकी कि हाँ मेरी बच्ची ने कि बाबा के ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, अपना मर्डर हो गया चाचू का? चाचू का। तो मेरे गहम गुमान में नहीं था। ये जो पुल है आपने नहर वाला क्रॉस किया है, हाँ हाँ इस पुल से वो ना पैदल 12 घंटे ड्यूटी करके पैदल इसकी रखवाली के लिए ये जो अच्छा फास्ट ये 3 किलोमीटर पैदल हाँ पैदल सफ़र करके दिहाड़ी लगा के अपनी 12 घंटे काम करके वेटर का काम 12 घंटे करके होटल पे वापसी पे इसकी रखवाली के लिए इधर इसके पास आता था हाँ वापसी पे।
नहीं, ये क्या आप लोगों के आपसी घरेलू ताल्लुकात भाइयों के खराब थे? नहीं सब भाई ठीक ठाक है, सब ये मेरे साथ ही सारे सही मिलते थे? सही मिलते हैं। आप लोगों ये को थोड़ा शरीफ आदमी था, थोड़ा सादा तबीयत का आदमी था, तो देखा दाढ़ी भी इसकी बड़ी हुई है। औरत कैसे बाहर निकल गई, ये मुझे समझाए थोड़ा सा। थोड़ी परजाई जड़ी है वो किवें घरों बाहर निकल गई, ये तलक किवें बन गए? तलक इस बेस पे बने हैं ना कि ये ना इसकी 2 बहनें हैं उधर चिड़ियाँ वाला में, ए मुंडा भी चिड़ियाँ वाले दा? उस साइड ही है जी, चिड़ियाँ वाले साइड का है। हाँ। तो ये उसके साथ इनका रिश्तेदार नहीं है, वो उधर गए हैं, उसकी उधर कोई अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में, हाँ, तो उधर की बहनें होती हैं 2 उधर, हाँ। तो उस वजह से उनको पता होगा शायद या नहीं पता, अल्लाह वाला आलम, हमने कौन सा देखा है। ये तो मामला तब खुला जब ये भाग के गई है पिछले बार, मैंने कहा इसको तलाक दे दे, फारग कर दे। इसने मुंह काला कर लिया, ये रखने वाली नहीं है। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, पैसा इंसान को मिल जाता है, इज़्ज़त नहीं मिलती है, लेकिन वो इज़्ज़त की नहीं धज्जियाँ। तो भाई जी फिर किसे घर तो वाली गल ना सुनी? बस भाई को समझाया, भाई ने कहा कि बच्चे रुल जाएंगे, बच्चों का मामला है, ते बच्चे ले आओ सी। बच्चे ਹੁਣ सर ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ जी ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अगर शायद बंदे की दी बन जाए, एक दफ़ा उसको ठुड्डा लगे, वापस आके शायद सुधर जाए। आदमी सुधर भी सकता है ना, मौका भी देना चाहिए एक। अच्छा हो क्या रहा है कि जब एक बदबख्त को आप मौका देते हैं ना, पार्डन माय वर्ड्स, मौका देते हैं ना, तो वो बजाय संभलने और समझने के वो कहता है अगली दफा मैंने वो काम नहीं करना जिससे मैं इस दफा पकड़ा गया हूं। ये अजाब आ गया। मोबाइल फोन, इंटरनेट, खुदा गारत करे इस बदबख्ती में, बदबख्ती आम करने वालों को। ये लोगों के घरों में घुस गया है। बेटी मां के साथ लेटी हुई है, नहीं पता मां को कि बेटी दुनिया के किस किनारे में है। पुत्र प्यो नाल पिया ते नहीं पता प्यो नूं कि पुत्र फिजिकली इत्थे पिया गया ते दर हकीकत होया किथे, किथे मुकाला कर रहे हैं, किदे घरे बड़िया है। और खैर से और कुछ हम कर नहीं पाते, तो हमें ये गुमान है कि हम बहुत अच्छे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मकामी जिम्मेदारी अदा करते हैं नियो टेलीविज़न की और हमारी आंखों और कान का काम करते हैं। बट सवाल शाह जी वही है कि क्या हो गया इस गोल्डन ट्रायंगल को? मियाँ साहब, एक हफ्ते में ये दूसरा नाखुशगवार वाक़या, और वो वाक़या जिन्हें घर की मुहाफिज समझा जाता है, घर की रानी, इज्जत, घर की मलका, घर की इज्जत, जिनके लिए मर्द सारा दिन सारी रात मेहनत करते हैं ताकि हमारी मलका, हमारी बच्चों की माँ अपने घर महफूज रहे, लेकिन वही जो है वो एक बच्चों को खा गई और दूसरी अपने खामन को। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या दूसरा सालमगीर में पेश आया, जिसमें एक खामन जो इंतहाई शरीफ, जिसकी बीवी घर से चली जाती है और दोबारा सिर्फ इसीलिए लेके आता है कि भाग जाती है, एक नामर्द के साथ जाती, नाराज होकर अपने माँ बाप के घर नहीं जाती, घर से एक आशिक के साथ 11 दिन आशिक के साथ गुजार के आ जाती है। वो फिर रख रहा है, वो फिर इसलिए रख रहा है कि मेरे बच्चे जो है वो ख्वार ना हो, मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए। मियाँ साहब, उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने खामंद को उसी के कमरे में बेदर्दी के साथ कत्ल किया, जो उसे आए रोज उसके घर मिलने आता था, और अजियतनाक और बच्चों की मौजूदगी में, और 11 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, और उस बच्ची ने अपने एक बाप कमरे का घर है, उस बच्ची ने अपने बाप को कत्ल हुए थे, उसके सामने उसके बाप को कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाली भी उसकी माँ, और अपने आशना के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। मियाँ साहब, ये वाकई गोल्डन ट्रायंगल है, और यहाँ पर लोग बहुत आसूदा हाल है, लेकिन हद से ज़्यादा शराफत और घर में नज़र ना रखना और बीवी और बच्चों से जो गैप है, मेरे ख्याल में ये इन चीज़ों का मौजब बन रहा है, और इसी वजह से ये तमाम मामला हो रहे हैं। अगर वो चली गई है तो उसे जाने दिया जाता। आज वो बच्चे बाप से भी महरूम है और माँ से भी। अगर बाप सर पे होता तो वो माँ की कमी पूरी कर लेता, लेकिन उस बदबख्त औरत ने अपने खामंद को कत्ल करके अपने बच्चों के सर से दोनों साए छीन लिए। शाह जी, रियासत इसमें क्या कर सकती है और हमें अपने घरों में क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो रियासत के करने के, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें घरों में संभालने पड़ेंगे। मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि इस पर कानून साजी कोई
अमल नहीं कर सकती कानून साजी पर, क्योंकि ये वो नासूर, वो दीमक है जो घरों के अंदर है, जो नज़र नहीं आ रही, मोबाइल की सूरत में, इंटरनेट की सूरत में। ये मैंने, आपने और हम तमाम घर वालों ने, तमाम मर्दों ने और ख़वातीन ने इस लानत से खुद दूर होना है और अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने हामद पर खुद नज़र रख के खुद उनसे मोहब्बत बढ़ानी है। इसके अलावा अगर आप कहें कि इसे पुलिस दूर करे, कानून नाफिज करने वाले अदारे इसे दूर कर सकें, ये बहुत मुश्किल ये है। समाजी इखलाकी बुराई है जो हमारे अपने मुआशरे में पनपी है। सराय आलमगीर के हवाले से बात करें तो जो गुज़श्ता रोज़ आपने प्रोग्राम देखा था, यानी जुमे के रोज़ जो देखा था, उसमें हमने आपको बताया कि किस बेदर्दी से माँ ने अपने 3 बच्चों को अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल किया, फिर उनको जलाया है। और आज जो स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं वो भी सराय आलमगीर से है, यहाँ पर उन बच्चों के बाप को कत्ल किया है। और एक बार फिर से इश्क व मोहब्बत की दास्तान है, लानत कमाने की दास्तान है जो हराम रिश्ते की सूरत में कमाई गई है। हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूँ कि जो इश्क की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और वो ये समझता है कि उसने बुरा नहीं करना या उसके साथ बुरा नहीं होना, याद रखिएगा बदबख्ती दरवाजा नहीं देखती है, बदबख्ती बस आ जाती है। अल्लाह पनाह अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।